Good morning. Welcome to IS Help Desk. As we all know that PT 2020 has been scheduled on 4th October 2020 and very few days are left for the examination. So we at IS Help Desk has come up with a new series on Revise for PT 2020 with IS Help Desk. In this we will cover important topics for the PT 2020 from different subjects, and in the first two videos on the ecology and environment we will try to cover the basic concepts and the basic definitions associated with it, because many a times in prelims examination the questions on definitions has been asked, and in the later part we will cover the current affairs. So now moving to the first topic, basic concepts associated with ecology. In this we will cover the difference between ecology, environment and ecosystem. What are the levels of ecology? What is ecosystem and its components? That is difference between the biotic and abiotic components. Then the concepts associated with ecological succession, ecological niche, concept of ecotone. Then food chain and food web, which is associated with trophical level and ecological pyramids. And then at last we will cover the type of species, interaction between the species and adaptations of different species in different ecosystems. We have chosen this topic because in the previous year questions on these topics were asked in the examination. So before starting the topic we should analyze the previous year questions. For example, the first question is based on ecosystems in the order of decreasing productivity. Second is on food chain. Then there is a question on sequence of food chain. Then ecological succession, description of the term ecosystem with reference to food chain, which of these are decomposers. Then what are the modifications occurs in the leaf in desert areas, and so on. So by going through the previous year questions we can understand the importance of the basic concepts associated with ecology for the examination. So now moving to the first topic, many a times students get confused between the term ecology, environment and ecosystem. So ecology is the study of interrelation between the organism and the interrelationship of the organism with the environment. Whereas environment is the sum total of living, non-living components, which involves the abiotic as well as biotic components. So later you will read about the biotic and abiotic components. And ecosystem is the complex of living organism, their physical environment and all their interrelationships. तो ecosystem जो है वो है कि जहाँ पे सारे organism एक साथ रह रहे हैं, उनका interaction physical environment के साथ कैसा है और वहाँ का physical environment कैसा है. So ecosystem is the total study of the particular region. So now moving to the topic, levels of ecology. Levels of ecology can be understood using this diagram. First is individual, जिसको हम बोलते हैं organism. तो एक particular, एक single living thing, चाहे वो animal हो चाहे plant हो, उसको हम बोलते हैं organism. Then moving to the population. Population जब एक ही type के organism एक जगह पे रहते हैं, then उसको हम बोलते हैं population. Then moving to the third part is community. जहाँ पे दो तीन तरह की स्पीशीज एक साथ रहती हैं उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिटी सिस्टम. दैट इज डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाई द सेम स्पेस एट द सेम टाइम. देन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम होता है कि जब हम इसी पूरे कम्युनिटी सिस्टम में जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, दैट मीन्स एबायोटिक थिंग्स को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर, सन, इस तरह से, तब दैट forms the ecosystem. Then moving to the biome. Biome जो होता है वो होता है कि used to describe organism that occupy a certain area. तो जब हम उस एरिया का जोग्राफी, उस एरिया के क्लाइमेट, उस एरिया की लोकेशन, इन सब को भी समझने लगते हैं एंड देयर इंटरेक्शन विद द इंडिविजुअल्स, और फिर उन पे क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है, देन इट forms the biome. And biosphere होता है, it describes the combination of every ecosystem on the planet. So levels of ecology are divided in these 6 parts. First is individual, then moving to the population, community,
इकोसिस्टम, बायोम एंड देन बायोस्फीयर. नाउ मूविंग टू द इकोसिस्टम. हमने पहले जो पढ़ा कि इकोसिस्टम होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जब एक साथ रहती हैं और उनका इंट्रैक्शन होता है तो हम उसे इकोसिस्टम कहते हैं. सो इकोसिस्टम हैज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स along with the energy sources. तो मेनली इकोसिस्टम फंक्शंस क्या होते हैं? एक होता है रेगुलेटरी फंक्शंस, जैसे हमारे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल को जब कंट्रोल करता है, वाटर एंड सॉइल फॉर्मेशन में जब इकोसिस्टम हेल्प करता है तो इट इज नोन एज रेगुलेटरी फंक्शंस. देन हैबिटेट फंक्शंस. देन इकोसिस्टम प्रोवाइड्स ए लिविंग प्लेस फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयरबाय कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन of their biological and genetic diversity. And third is that production functions की photosynthesis and nutrient uptake किस तरह से हो रहा है, autotrophs किस तरह से work करते हैं. And so ecosystem functions are divided as regulatory, habitat and production functions. Now moving to the components of ecosystem. As we have read earlier that it consists of biotic as well as abiotic components. So what forms the biotic components? So the living organism in the ecosystem are classified depending on how they get their food. So first is producers. They're also known as autotrophs or self feeders. Producers वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं by using the photosynthesis process और chemosynthesis process. जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. देन मूविंग टू द सेकेंड, दे आर कंज्यूमर्स. दीज आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स और अदर फीडर्स. कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं एंड दे आर डिपेंडिंग ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड. सो कंज्यूमर्स को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में. फर्स्ट इज हर्बीवोरस, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जो भी प्लांट ईटर्स होते हैं, जैसे डियर, रैबिट, कैटल्स. कार्निवोर्स होते हैं जो मीट ईटर्स होते हैं, जैसे लायन, टाइगर्स. ओमनीवोर्स होते हैं जो आर दोज विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड डिकम्पोजर्स होते हैं विच डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, उनको जब वो डिकम्पोज करते हैं और दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं. दीज इंक्लूड द बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा. देन मूविंग टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में हमारे जितने भी आसपास की चीजें जैसे एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, इन सबको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बोलते हैं. लेकिन these things interact with the organism in the ecosystem. So examples of non-living components in the ecosystem include sunlight, percentage of water and air in soil, temperature, salinity of water, precipitation, oxygen dissolved in water, nature of soil, nutrients present in soil, fire, this means forest fire, then water currents, etc. Because these non-living components interact with the living components in the ecosystem and helps in maintaining a balance. क्योंकि अगर sunlight नहीं होगी तो producers अपना food produce नहीं कर पाएंगे and then the complete food chain will collapse. Similarly, different bacteria feed on the nutrients present in the soil. So non-living components also play a very important part in the ecosystem. Now moving to the next part, what is ecological niche? अगर हम simple words में इसको समझें तो उस कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट में क्या रोल होता है उसको हम इकोलॉजिकल निश बोलते हैं. कि मेनली द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पीशीज, कि वो जितने भी बायोटिक एलिमेंट्स हैं या जितने भी एबायोटिक एलिमेंट्स हैं उनके साथ किस तरह से इंट्रैक्शन कर रहा है, पर्टिकुलर इकोसिस्टम में उसका क्या रोल है, किस तरह से वो रिसोर्सेज को यूज करता है, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल निश. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नो टू स्पीशीज इन ए हैबिटेट कैन हैव द सेम निश. वो 2 स्पीशीज एक ही जगह पे रह सकती हैं, लेकिन अगर हम उनका फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक देखें और पर्टिकुलर इकोसिस्टम में उनके रोल को देखेंगे तो कोई भी 2 स्पीशीज के इकोलॉजिकल निश सेम नहीं हो सकता. टाइप्स ऑफ निश में होता है हैबिटेट निश,
वे कि कहाँ पे वो रहता है, फूड निश व्हाट इट ईट्स और डिकम्पोजेस, रिप्रोडक्टिव निश हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस, एंड फिजिकल एंड केमिकल निश कि उसको कितना टेम्परेचर, कितनी ह्यूमिडिटी या किस तरह की फिजिकल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन डिपिक्ट करता है कि कोई भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम किस तरह से ग्रो करता है विथ टाइम. क्योंकि जो भी हम आज देख रहे हैं, जिस तरह से भी हमारे आसपास इकोसिस्टम है, वो पहले नहीं था. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन ही वो प्रोसेस होता है जिससे हम स्टडी करते हैं कि स्टार्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से हुई, फिर उसके बाद वो कैसे ग्रो हुआ. इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन उसे बोलते हैं व्हेन द इकोलॉजिकल सक्सेशन बिगिंस इन एसेंशियली लाइफलेस एरिया. जैसे कि कोई भी अगर बेयर रॉक रखा हो या कोई भी एरिया है जहाँ पे सॉइल नहीं है, न्यूली फॉर्म्ड रॉक्स हैं, न्यूली फॉर्म्ड सैंड ड्यून्स हैं, सो वहाँ पे लिचेंस जो हैं विच आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गाई एंड फंजाई या छोटे से प्लांट्स, वो वहाँ पे डेवलप होंगे और वो डिकम्पोज होने के बाद दे विल फॉर्म द फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल. फिर उसमें और एनिमल्स वहाँ पे आके रहने शुरू करेंगे और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहने शुरू करेंगे. देन दे विल डिकम्पोज and a form of life will start. यहाँ स्मॉल प्लांट्स की जगह पे ग्रासेस एंड श्रब्स निकलेंगी. सो प्राइमरी सक्सेशन उसको कहते हैं जब इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा होता हो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से. मीन्स कोई भी ऐसी एरिया में जहाँ पे पहले लाइफ फॉर्म नहीं था और वहां पे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन. एंड देन मूविंग टू द सेकेंडरी सक्सेशन, वो एरिया जहाँ पे पहले वेजिटेशन था या पहले लाइफ फॉर्म्स था, लेकिन किसी भी वजह से वहां पे वो खत्म हो गया हो और फिर उसके बाद वहां पे अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लाइफलेस एरिया है और फर्स्ट टाइम ही लिविंग फॉर्म्स की ग्रोथ हो रही है. जैसे अगर फॉरेस्ट फायर के बाद आपका पूरा फॉरेस्ट एरिया अगर डिस्ट्रॉय हो गया है एंड द फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिग्रेड हो गया है, तो वहां पे एक उस पर्टिकुलर पैच एरिया में फिर से अगर ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. क्योंकि वहां पे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, फिर किसी वजह से वो वहां पे खत्म हो गए, उसके बाद अगर कुछ टाइम पीरियड के बाद वहां पे फिर से डेवलपमेंट होता है, देन इट इज नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज इकोटोन. इट इज ए ट्रांजिशनल रीजन बिटवीन 2 इकोसिस्टम्स. जैसे मान लीजिए कि 2 इकोसिस्टम है, एक वाटर इकोसिस्टम हुआ, एक लैंड इकोसिस्टम हुआ. तो अगर हम वाटर मीन्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से जब हम वाटर इकोसिस्टम के तरफ मूव करते हैं तो हमें बीच में मैंग्रोव्स या एस्टुअरी फॉर्मेशन होता है. सो मैंग्रोव्स एंड एस्टुअरी जो है वो इकोटोन एरिया कहलाता है. मीन्स दीज एरियाज हैव द फीचर्स ऑफ both the ecosystem. So ecotone region provides condition of both the type of neighboring ecosystem and thus supports a great variety of landforms. क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मैंग्रोव्स का, तो उसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के भी फीचर्स हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम के भी फीचर्स हैं. सो दैट्स वाई it supports great variety of life forms. An ecotone is thus a biologically rich area with very high species diversity. And as I have told earlier, in some cases the number of species and the population density of some of the species is greater in the ecotone than in the adjacent ecosystem. This tendency of an increased diversity and density is called edge effect. It means that कि कोई भी स्पीशीज अगर वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है तो फॉर एग्जाम्पल उसकी पॉपुलेशन और ग्रोथ कम है, लेकिन जब वो इकोटोन अगर एरिया में रह रहा है तो वहां पे उसकी डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी बढ़ गई है. सो दिस इज नोन एज एज इफेक्ट. देन मूविंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज फूड चेन एंड फूड वेब. बिकॉज as we have seen earlier, many questions based on food chain have been asked in the previous examination.
So food chain simply describes how energy and nutrients move through an ecosystem. अगर living components को हमने जब divide करा था तो so they were divided in producers and then herbivorous, carnivorous, omnivorous. So if we see with the diagram, the carrot is the producer, then carrot is consumed by the rabbit. So this is the herbivorous. Then rabbit is consumed by fox, which is carnivorous, and fox is consumed by lion. So food chain is always directional. That is, it moves from producers to herbivorous to carnivores. And it also depicts the transfer of energy from one level to another. So food chain is divided in two parts. First is grazing food chain and second is detritus food chain. So grazing food chain moves through producers, then consumers, and then decomposers. And second is detritus food chains. Detritus food chain starts with fallen leaves or dead organic matter. कि अगर ये fallen leaves हैं, then these fallen leaves will be consumed by earthworms or different forms of bacteria and fungi. Then these bacteria and fungi or earthworm will be consumed by अदर कार्निवोर्स. सो डेट्रियस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन में ये अंतर होता है कि ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर एंड डेट्रियस फूड चेन स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर. एंड देन मूविंग टू द कॉन्सेप्ट व्हाट इज फूड वेब. सो फूड वेब रिप्रेजेंट्स मल्टीपल पाथवेज थ्रू विच एनर्जी एंड मैटर फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम. फूड चेन जो है वो एक सिंगल सीक्वेंस को डिफाइन करता है और इसी में ही जब हम बहुत सारे सीक्वेंसेस को एक दूसरे से जब ऐड कर देते देन इट फॉर्म्स अ फूड वेब. जो एक्चुअल इन रियल इकोसिस्टम कोई भी फूड चेन इंडिविजुअली वर्क नहीं करती है, वो हमेशा एक फूड वेब में वर्क करेगी. सो इफ वी गो थ्रू द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, then food chain refers to the natural system by which energy is transmitted from one organism to another, and food web consists of number of interconnected food chains. Then second is member of higher trophic level feed upon a single type of organism, and in this a single organism feed on different organisms. Food web improves the adaptability and competitiveness of the organism, क्योंकि यहाँ पे food web में बहुत सारे organism एक दूसरे के साथ competition कर रहे हैं and in the process they adapt to the different things for resources. Now moving to the next topic, that is trophical levels and ecological pyramids. So अभी हमने food chain पढ़ा कि food chain starts with a grazing food chain starts with producers, then moves to the herbivores, then herbivores are eaten by carnivores and carnivores are eaten by omnivores. So उसी levels को जब हम एक diagram में depict करते हैं तो उसको हम बोलते हैं trophic level. For example, अगर आप इस figure को देखेंगे तो नीचे सबसे पहले जो है वो producers होते हैं, then consumers, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड क्वार्टनरी कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर जो है वो बेस जो है वो इसमें पिरामिड की तरह इसका शेप होता है एंड विथ ए ब्रॉड बेस. सो द ट्रॉपिक लेवल डिक्रीजेज इन साइज व्हाइल मूविंग इन द अप डायरेक्शन एंड इट डिपिक्ट्स ए पिरामिड. सो ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी पास होती है थ्रू अ फूड चेन और वेब फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल्स, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. सो इसमें जो रूल होता है उसको हम बोलते हैं 10%, कि अगर हम प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स पे जा रहे हैं और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स पे जा रहे हैं तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी विल गेट ट्रांसफर्ड एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और विल बी गिवन ऑफ टू द एनवायरमेंट एज हीट. सो टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं. पिरामिड ऑफ नंबर्स ये बताता है कि हर लेवल पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं. देन सेकेंड इज पिरामिड ऑफ बायोमास. इट रिफर्स टू द फूड अवेलेबल फॉर द सक्सीडिंग ट्रॉफिक लेवल. फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस फिगर को देखेंगे तो प्रोड्यूसर्स का बायोमास ज्यादा है, देन इट गेट टेपर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे, इट रिफर्स टू फूड अवेलेबल टू द सक्सीडिंग ट्रॉफिक लेवल. सो फूड अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है इन द ecological pyramid. And the third one is pyramid of energy. It shows the overall energy in the ecosystem and how it flows in the trophic levels. Then there is one more important thing, that
पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो अपराइट पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड दोनों हो सकता है. देन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो अपराइट पिरामिड भी हो सकता है और इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकता है. अपराइट एज शोन अर्लियर कि प्रोड्यूसर्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है देन प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, सो इट गेट टेपर्ड इन द अपराइट डायरेक्शन. अगर हम एक इन्वर्टेड पिरामिड में अगर हम सिर्फ प्रोड्यूसर्स में एक ट्री को ले रहे हैं देन डिफरेंट बर्ड्स विल बी डिपेंडेंट ऑन सिंगल ट्री. फिर उसके बाद पैरासाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन दीज बर्ड्स and per parasites are dependent on these parasites. So the quantity is increasing as moving upward. So इसको हम inverted pyramid बोलते हैं. Similarly in case of pyramid of biomass, it can also be upright pyramid and inverted pyramid. अगर हम inverted pyramid की बात करेंगे so it occurs in the aquatic ecosystem जहाँ पे जितने भी producers हैं, that means कि जितने भी phytoplanktons हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं फिशेस. देन दीज फिशेस आर कंज्यूम बाय कार्निवोर्स फिशेस. सो इट इज पिरामिड ऑफ बायोमास की फूड अवेलेबिलिटी कितनी है एक लेवल से दूसरे लेवल पे. दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर्स. पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास में डिफरेंस है. So both can be upright pyramid and inverted pyramid. However, if we talk about pyramid of energy, it is always upright. कभी भी पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो इन्वर्टेड नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी हमेशा इट इज यूनिडायरेक्शनल. देन देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन. इट इज अ फिनोमेना ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस accumulated in the tissues of organism at successive higher trophic levels of food chain. बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप अगर ये देखिए कि एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पे हम डिफरेंट पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स को हम यूज करते हैं एंड दे मूव टू द प्लांट. जब वो प्लांट में जाके अक्यूमुलेट हो जाएगा फिर प्लांट्स आर कंज्यूम बाय हर्बीवोर्स तो वो थोड़ा सा ट्रांसफर होगा हर्बीवोर्स में देन इट मूव्स टू द कार्निवोर्स. सो इसको बोलते हैं हम बायोमैग्निफिकेशन क्योंकि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स के साथ कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज होते जाते हैं और हायर लेवल ऑफ फूड चेन में सबसे ज्यादा मिलता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्पीशीज. सो द फर्स्ट वन इज डोमिनेंट स्पीशीज. अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी स्पीशीज का बायोमास या नंबर सबसे ज्यादा है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट स्पीशीज. देन सेकेंड इज कीटोन स्पीशीज. कीटोन स्पीशीज उन्हें बोलते हैं विच हैव द इम्पॉर्टेंट रोल इन द पर्टिकुलर इकोसिस्टम. सो कोरल्स जो है वो कीटोन स्पीशीज हैं क्योंकि दे प्रोवाइड द हैबिटेट एंड फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म. सो अगर कोरल रीफ नहीं होगी कोरल इकोसिस्टम नहीं फॉर्म हो सकता. सो कोरल रीफ्स आर कीटोन स्पीशीज. Then foundation species play a major role in creating or maintaining an habitat that support other species. Umbrella species. An umbrella species is a large animal or organism on which many other species depend. So अगर हम umbrella species की बात करें तो tiger is an umbrella species क्योंकि बहुत सारी species उस पर depend कर रही हैं and tiger conservation में अगर हम काम करते हैं through project tiger तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का भी कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है. सो इसलिए इट इज नोन एज अम्ब्रेला स्पीशीज. क्लाइमेट रेस्क्यूअर्स वो स्पीशीज होती हैं जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हैं. जैसे अगर हम सी ग्रासेस की बात करें सो दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द स्टॉर्म्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी वो शेल्टर प्रोवाइड करती हैं. सो दीज आर नोन एज क्लाइमेट रेस्क्यूअर. Benefactor species, they provide some positive benefit to the other beneficiary species, and cornerstone species are rare species that can affect local richness. So these are the types of species. Then moving to the interaction between species. दो species के बीच में किस तरह से interaction होता है उसको divide करा गया है. First is predation. Predation means कि जब दो स्पीशीज एक साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और एक स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है. सो इट इज नोन एज प्रेडेशन रिलेशन. देन सेकेंड इज कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन में होता है कि जब बहुत सारी स्पीशीज एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए फाइट कर रही होती हैं एज दे एग्जिस्ट इन
the same limiting resource. So वहाँ पे competition create होता है. So interaction between the species is known as competition. Mutualism is an interaction which benefits both the species. For example, in lichens, it is a symbiotic, it is a combination of algae and fungi. दोनों जब साथ में रह रहे हैं, so it is a win-win situation for both the organism. So उसको हम बोलते हैं mutualism. The fourth one is communalism, in which when the two species interact, एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा हो एंड द सेकेंड स्पीशीज रिमेन अनअफेक्टेड, मीन्स उसका फायदा भी नहीं हो रहा, उसका नुकसान भी नहीं हो रहा. सो इफ वी कंपेयर इट विथ प्रिडेशन, प्रिडेशन में दोनों स्पीशीज जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो एक का बेनिफिट होता है और दूसरे का नुकसान हो रहा होता है. कम्युनलिज्म में है कि दोनों स्पीशीज जब इंटरेक्ट कर रहे हो तो एक का बेनिफिट हो रहा है एंड सेकेंड रिमेन्स unaffected. And the last one is amensalism, in which when the two species interact, the presence of one species have a negative effect on the another, but the first species is unaffected. For example, अगर elephant किसी भी area से जा रहा है तो it will crush the small plants. So elephant को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन second species have negative impact. So these are the 5 interaction that occurs between the species in the ecosystem. So you should know the difference between all the 5. And at last we are winding the whole lecture with some facts, because on these topics the questions have been asked earlier. If we move to the adaptation part of the ecosystem, then mainly questions have been asked related to desert ecosystem. Desert animals prevent water loss from their body by reducing surface area, and they have thick skins with the presence of scales and spines, ताकि sweating जो है वो कम हो सके, and in the daytime they live in the shadows and become active at night, so they are nocturnal in nature. Some desert animals store water in their body, as we know. Example is camel. Then if we move to the desert plants, they have no leaves. Their leaves are reduced to thorns and photosynthesis takes place by stems. जितने भी आप कैक्टस होते हैं उनमें लीव्स नहीं होती हैं. These leaves are thorns और उनका photosynthesis जो है वो stem से होता है. And for more facts, you can download the material from the link given in the description box. Thank you. Hope you have liked the video. For any query, you can mail us at info@ishelpdesk.in or WhatsApp at 85860 55783. And for more guidance, please visit our website. Thank you.